we children continuing ahead with chapter 10. There is one more sum which involves the three formulas. This will be the last sum for this chapter, which involves those three formulas, which are v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, and v square minus u square is equal to 2gs. A car falls from a height and reaches ground in 0.5 seconds. Find its speed on striking the ground. अब we know when object is thrown from top, तो हम क्या zero लेते हैं, u zero लेते हैं, तो that means हमें v निकालना है. जब आप इसमें अगर आप देखें, हमारे पास v है, g वैल्यू उसने बहुत अच्छा आपको 10 दिया हुआ है, g है, और v निकालना है आपको, u है आपके पास, g है एंड टाइम भी है, तो आपका v निकल जाएगा. जो फर्स्ट पार्ट में आपको v निकालना है, आपका v निकल जाएगा. And object is thrown from the top, it falls from the top, so as you know we take u to be 0. And you also remember जब object ऊपर फेंकते तो हम क्या 0 लेते हैं, v. Anyway, and second part है from what height the car fell, कितनी height से गाड़ी गिरी, तो basically आपको s निकालना है. तो एक बार आपका v आ जाएगा तो आप easily ये फॉर्मूला लगा के you can easily calculate s. Okay. Okay. Now we will see another concept which is mass and weight. Many times we use the word mass and weight interchangeably, but they are different. उनमें एक difference है. सबसे पहली बात, mass का unit होता है kg, okay, kilogram. And mass wherever we go in the world, चाहे मून पे चाहे अर्थ पे कहीं पे भी, it will remain constant. वो हमारा inherent है. Mass remains constant. Weight का unit होता है capital N या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बेसिकली फोर्थ वाला यूनिट होता है weight का. weight का साइंटिफिकली फॉर्मूला होता है weight W is equal to m into g. Okay. Where m stands for mass and g stands for acceleration due to gravity. तो mass का यूनिट kg and acceleration का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक यूनिट ये हो सकता है, या कैपिटल N यानी फोर्स वाला न्यूटन की न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट, वो भी हम यूज कर सकते हैं. Mass throughout the world will remain constant throughout the universe, but weight can vary because weight depends on small g value, which is acceleration due to gravity. जैसे अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, मून की है 1.6, तो इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट मून की 1/6 होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून की 1/6 होती है, तो इसलिए कोई ऑब्जेक्ट का वेट सपोज अर्थ पे सपोज 60 न्यूटन है और मून पे ये वेट अगर हम निकाले जाए तो इसका 1/6 हो जाता है, तो डिवाइड बाय 6 किया जाता है, तो इसका 10 आता है. तो वे जो W है weight, it depends on the value of small g, so it varies. Okay, it varies. On Earth also it varies. On planet Earth also it varies very minutely, but it varies a little bit. Regarding that, there is a question also. Mass. We have learned that in the previous chapter, mass of an object is the measure of its inertia. We have also learned that the mass, the greater the mass, the greater is the inertia. It remains the same whether the object is on Earth, the moon, or even in outer space. Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place. Weight. We know that Earth attracts every object with a certain force, and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the Earth. ये उसका definition है. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the Earth. We know F is equal to ma. That is F is equal to m into small g. The force of attraction on object is known as weight of the object. It is denoted by capital W. Substituting the same, and we get W is equal to m into g. As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the Earth, the SI unit of weight is the same as that of force, which is Newton. The weight is a force acting vertically downwards. It has both magnitude and direction. We have learned that the value of g is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to mass of the object, that is W, is equal to m.
proportional to m. It is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass. The mass of an object remains the same everywhere, that is on earth and on any planet, whereas its weights depend on its location. अब एक चीज निकालता है नेक्स्ट टॉपिक पे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून. एंड जैसे हमें मालूम है एफ फोर्स का फॉर्मूला Fg(m1m2) अपॉन डी स्क्वायर है, इसी तरह वो वेट निकालता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. और ये जब कैलकुलेशन का हमें डिटेल में नहीं करना है, बट हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये जो रेशियो है ये 1:6 होता है. जो रेशियो है ये 1:6 होता है. आपको ये एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये रेशियो 1:6. बेसिकली अगर कोई चीज अर्थ पे सपोज 120 न्यूटन वे करती है, तो मून पे कितना करेगी, जो भी ये अगर अर्थ का वेट है, ये अर्थ पे उसका ऑब्जेक्ट का वेट है, तो उसको डिवाइड बाय 6 करना है आपको. तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो मून पे वेट कितना आएगा उसका 20 न्यूटन. ओके, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है. दिस रेशियो यू हैव टू रिमेंबर. Now let's look at a sum. Mass of an object is 10 kg. ठीक है. What is its weight on earth? कई बार आपको मास और वेट में कंफ्यूजन होगा. आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी है. मास का यूनिट केजी, वेट का न्यूटन, कैपिटल एन यानी न्यूटन, और वेट का फॉर्मूला W is equal to small m into small g. So mass of an object is 10 kg. What is the weight on earth? W is equal to m into g. और आप ये फिर निकाल सकते हैं. स्मॉल जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो आपको अपने आप लेनी है. वो कितनी लेनी है? 9.8. अनलेस क्वेश्चन में 10 दियो तो आप 10 ले सकते हैं, नहीं तो आप 9.8 ले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन ऑन अर्थ. व्हाट इज इट्स वेट ऑन मून? मून पे कितना वेट होगा? जैसे अभी हमने आपको बताया मास ऑफ मून एंड अर्थ तो का रेशियो क्या हो जाता है, ये 1:6 है. मून पे मून का वेट निकालना है, अर्थ पे कितना है उसका 10 है. अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज इट्स वेट ऑन मून. अब एक क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन 12. हमें क्वेश्चन पीछे की जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 6 करना है, एक क्वेश्चन 12 करना है. ओके, ये तीनों सॉल्विंग वाले हैं. ये लास्ट सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर के. 12 पहले कर लेते हैं क्योंकि इसी टॉपिक पे है. The gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on earth. What is the weight in newtons of an 10 kg object on the moon and on the earth? तो बाई चांस इसी क्वेश्चन का एक तरह से पार्ट है, बट एनीवे, जैसे एक 10 kg ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, वो आप निकाल लेंगे ऑलरेडी. एंड उसका पर अब जब मून पे निकालना होगा तो आप बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1/6. ठीक है, कि मून पे जो भी वेट होगा 1/6 होगा. तो फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो इस क्वेश्चन का, 12th का बाई चांस. एंड सेकंड पार्ट के लिए जब आप यू विल फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो उसको बस 1/6 से मल्टीप्लाई करना. ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 6 एंड फर्स्ट करना है हमें. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? Suppose दो objects हैं m1 और m2, ठीक है, और suppose उन दोनों के बीच का distance x है, ठीक है. तो अगर हम force का फॉर्मूला लगाएं, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और G m1 m2 अपॉन d की जगह x लिख दिया तो ये x स्क्वायर. ठीक है, अब वो क्या कहता है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. नाउ अब न्यू डिस्टेंस जो है आधा कर दिया. पहले x था, अब डिस्टेंस कितना हो गया, x/2. डिस्टेंस आधा कर दिया. तो अब हम अगर इक्वेशन में डालें, इसको सपोज मैं FA लिख देता हूँ अभी, और इसको FB लिखता हूँ. जब डिस्टेंस हमने चेंज किया तो G m1 m2 अपॉन x/2 का स्क्वायर
और अगर हम x/2 यानी x/4 होगा, 4 ऊपर जाएगा, और अगर हम देखें ये gm1m2 अपॉन x² किसका वैल्यू है, fa का है, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जब डिस्टेंस आधा किया तो अब जो है फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा जो ओरिजिनल फोर्स था। ठीक है, ओरिजिनल फोर्स fa हमारा क्या था, इतना, जब डिस्टेंस x था। अब डिस्टेंस कितना कर दिया, आधा, x/2 हमने डाला, तो यहाँ क्या आएगा, x/4 इन्वर्ट करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा। और अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो हमने इसकी जगह fa लिख दिया, तो हमें मालूम चलता है कि ये 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स 4 टाइम्स। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, FB/FA 4:1। अब एग्जैक्टली इसी तरह का ही सम है, बट हल्का सा डिफरेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन लेट अस अज्यूम दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस सपोज x है, एंड फिर ओरिजिनल फोर्स हमारा क्या आया, g, पहला वाला केस हम करें, g m1 m2 अपॉन d² यानी x²। ठीक है, 1। अब वो क्या कहता है, what happens to the force between the two objects first if the mass of one object is doubled, यानी सपोज m1 जो है अब वो बन गया 2m1, डबल हो गया उसका मास, तो मैं m1 की जगह 2m1 डाल देता हूं। gm1 m2 अपॉन x² अगर आप देखें वो किसका वैल्यू है, fa का, यहाँ लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि जब मास डबल किया तो फोर्स बिकम्स ट्वाइस, इट बिकम्स डबल। सेकंड है द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड पहले और फिर ट्रिपल्ड। तो मैं डबल वाला पार्ट करता हूं। डिस्टेंस ओरिजिनली x था, अब सपोज डिस्टेंस हमने डबल कर दिया, दूर कर चले गए, और डिस्टेंस अब कर दिया 2x, तो क्या डिफरेंस होगा, x की जगह और ये, तो मतलब अगर आप रेशो देखो तो FB अपॉन FA कितना आता है, 1:4, यानी अब जो है फोर्स 1/4 हो गया। जब आपने ऑब्जेक्ट और दूर गए, आपस से और दूर गए, इनिशियली x था, अब डिस्टेंस क्या हो गया 2x, तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो फोर्स है 1/4 हो गया। इसी तरह जब आप ट्रिपल करेंगे, वो मैं नहीं कर रहा हूं, जब आप करेंगे तो आपको यहाँ रेशो 1:9 मिलेगा, तो आप रियलाइज करेंगे कि जो ओरिजिनल फोर्स है अब 1 का फोर्स अब कितना हो गया, 1/9 हो गया। ठीक है, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, लास्ट है इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल, यानी m1 बन गया 2m1 एंड m2 बन गया 2m2। अब अगर हम डालेंगे m1 की जगह 2m1, m2 की जगह 2m2, टू टू जा 4 ब्रैकेट gm1 m2 अपॉन x², और अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, fa। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल किया तो कितना फोर्स बन गया, इट बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, सो डू दीज क्वेश्चंस।